एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कबीर ऐसी होई परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिधौरा लीना सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ खेत कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा पंच पदा अचर चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सार लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई अचर चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जुगो जुग टल गरीबनवाज सतगुरु चाबर छतर तख्त दे मालक सतगुरु लोक प्रलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके मुंबई अते नवी मुंबई दियां समुचियां सिख संगतां वल्लों अते गुरु कार कमोठा दी समुची संगत दे प्रबंधक कमेटी दे उपराले दे नाल हर साल की तरह गरीबनवाज सतगुरु सरबंसदानी सतगुरु अमृत के दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के चारे लाल अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा अजीत सिंह साहिब जी धन धन बाबा जुझार सिंह साहिब जी पंजां प्यारिਆਂ विचों तीन प्यारे प्यारे हिम्मत सिंह जी प्यारे मोहकम सिंह जी प्यारे साहिब सिंह जी और उन्हां नाल शहीद होने वाले 40 सिंह जो चमकौर साहब की कच्ची गढ़ी के अंदर 22 लाख तो वड्डा घेरा जालमां वल्लों पाया होया है और उस गढ़ी के अंदर सतगुरु जी दे लाल ते बाकी सिंघां ने सवा लख वैरियां दे नाल मुकाबला करदियां कल्ला
ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ 11 ਪੋਹ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹਿੰਦ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹੱਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਹੱਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਰਛੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਏਗੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ,
खालसा पंथ दे उत्ते तां इस धर्म नूं दुनिया की कोई शक्ति नहीं कि मिटा सकेगी, क्योंकि इस धर्म की स्थापति लई 10 गुरु साहिबानां दी, साहिबजादियां दी पवित्र शहीदी दी, गुरसिखां दी कुर्बानी दी, ये बहुत वड्डी साडे कोल एक अमुक ते अतुट खजाना और रहमतां दा खजाना साडे पास है। पर कई वेरी साडियां ढिलियाइयां करके साडे विच घाट आ जाती है। गुरु बेचारा क्या करे, जो मीह ना झाले खेत, ये सौ साखी दे बचन हैं। गुरु की करेगा जे सिख दी शरधा दी वट कमज़ोर है ना, गुरु की किरपा का मीह उत्थे ठहर नहीं सकता। जदों बरखा पैदा हुंदी है संसार दे उत्ते तां आपां खेतीबाड़ी करन वाले हाँ, वपार करन वाले हाँ, तां खेतां नूं वट्टां मारियां जांदियां कि मीह दा पानी साडियां खेतां दे विच, साडी धरती विच भरिया रहे, ताकि सोहनी फसल बीजांगे जां बीजी हुई फसल नूं चंगी तरह वर्खा का पानी सिंजेगा, जिस दे नाल साडी बहुत वड्डी फसल बाड़ी होएगी, सानू बहुत वड्डा नफ़ा मिलेगा। पर जे कोई अणगहली करन वाला आलसी मनुख वट्टां नूं चंगी तरह मजबूत करके नहीं रखेगा, जां वट्टां नूं चंगी तरह उन्हें तैयार ही नहीं किया, तो जोर की वर्खा उहदे खेत विच नहीं रुक सकता, वो पानी बाहर चले जाता है। वो खेत, वो जमीनां, वो धरती खाली हो जांदियां हन। इस करके सौ साखी दे विच बचन आए हैं, गुरु बेचारा क्या करे जो मीह ना झाले खेत। सिख नूं शरधा दी वट मार के रखनी पैंदी है। जे शरधा की वट साड़ी कमज़ोर रह गई जां टुट गई तो गुरु की किरपा का मीह साड़ी हिरदे रूप धरती के उत्ते नहीं पवेगा। फिर असी खाली दे खाली रह जावांगे। गुरु दियां रहमतां दा नफ़ा, गुरु दियां रहमतां दा खजाना साडे पास नहीं रहेगा। इस करके साडे उत्ते सतगुरु जी ने जो परोपकार कीते है ना, इस इतिहास नूं सानू बार बार दोहराउणा चाहिए। महापुरख दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले बचन क्या करते सन कि जदों गुरसिख अपने परिवार विच शाम नूं बैठ के रह रास का पाठ करे तो रोज़ाना अपने बच्चों नूं, सारे परिवार नूं गुरु साहिबानां दा, साहिबजादियां दा, शहीदां दा और सिख संतां दा, भगतां दा इतिहास थोड़ा थोड़ा रोज़ाना लड़ीवार सुणाउंदा रहे, लड़ीवार सुणाउंदा रहे। कन्नां दे विच इतिहास दे बचन साडे बच्चों दे, साडे परिवार दे पैंदे रहण, तां कि साडे घरां विचों, परिवारां विचों सिੱਖੀ ना कदे खत्म होवे। अज जिहड़ी बच्चों विच सिੱਖੀ दी प्रपक्ता वल्लों वड्डी घाट आपां देख रहे हैं, ये साडे विच सब तो वड्डी कमी आ रही है कि असी अपने बच्चों नूं गुरबाणी का शुद्ध पाठ ते इतिहास इस तो दूर करते जा रहे हैं। इस करके इतिहास सुनना अति लाजमी है। धन गुरु अंगद देव साहब जी ने सब तो पहला इस संसार के उत्ते गुर इतिहास लिखवाउण दा पूरना पाया सी, खडूर साहब जी की पावन धरती के उत्ते। वो किस लिए पाया सी कि साडे वास्ते कि आने वालियां सिखां दियां पीढ़ियां गुरु का इतिहास पढ़दियां सुनदियां रहन ते गुरु के परोपकारां नूं अपने मन चित्त विच वसा के गुरु की आग्या, गुरु के बचनां दा पालन करन। कदे गुरु के बचनां तो उल्ट ना चले जाण, दूर ना चले जाण, कदे मनमुख जां बेमुख ना बन जाण। बचन गुरु जो पूरा कहियो मैं छीक गांठरी बद्धा, जो गुरु ने बचन कीते उन्होंने कस के पल्ले नाल बन लेना, उन्हां बचनां नूं अपने पास धारण करके रखना, वसा के रखना। ये जो साका है, जिहड़ा इतिहास है साध संगत जी, ये दुनिया विचों भी विलखण है।
और इस इतिहास की गाथा भी विलक्षण है। और जे ये इतिहास सुनदियां, भाव साहिबजादियां दा इतिहास सुनदियां, किला आनंदगढ़ तो छड्डण तो लैके फतेहगढ़ साहब का इतिहास सुनदियां सुनदियां विचारदियां विचारदियां सिख दा हिरदा द्रवीभूत नहीं हुंदा। भाव साडे हिरदे विच जे वैराग नहीं पैदा हुंदा, वैराग नहीं सानू आउंदा, तो समझ लो साडे हिरदे नालों वड्डा होर कोई पत्थर हिरदा नहीं है। साडे नालों पत्थर चंगे है, असी तो पत्थरां नालों भी भैड़े हैं। पत्थर ते बूंद पई ना पई, सियाणियां ने कहा, पत्थर ने कठोर रहना ही रहना, खुश्क रहना ही रहना, क्योंकि वो बूंद नूं अपने अंदर जजब नहीं करता। इस करके इतिहास की अमर गाथा का सानू ज्ञान भी, सुनना भी, संगत दे विच बैठ के विचारना भी, और इनू सुनद्या सुनद्या साडे हिरदे विच वैराग उत्पन्न होवे, फिर ये पूरा फल सानू प्राप्त हुंदा। जरा ध्यान मारो, सुरत नू श्री आनंदपुर साहब की धरती ते लैके जाओ, जिहड़ी आनंदां दी पुरी है साध संगत जी आनंदपुर साहब, ये धरती नू धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वसाया। ये किसी जगह ते जाके कब्जा नहीं किया सी, जां किसी कोलों दान विच लई हुई जगह नहीं है। 1,57,000 जो बिलासपुर का राजा तारा चंद उसनूं 1,57,000 रुपया दमड़ा दे के ये धरती मुल खरीदी हुई सी। ये गुरु की नगरी वसाई हुई सी, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का निवास है। और आनंदपुर साहब दे विच 5 किले सतगुरु ने वसाउणा कीते, तैयार करवाए। किला आनंदगढ़, किला लोहगढ़, किला फतेहगढ़, किला होलगढ़, किला तारागढ़, ये 5 किले बाए सतगुरु जी ने। और इसे धरती ते सतगुरु जी ने केसगढ़ साहब तख्त की रचना की, जिथे खालसे नूं 5 प्यारियां दे सीस लाए और 5 बाणियां पढ़ के खंडे बाटे का तैयार करके 5 प्यारियां नूं सुरजीत करके अमर की दात बख्शिश की। और सतगुरु जी इत्थे निवास रख रहे हैं। अपनी धरती अपने घर विच सतगुरु जी का रहन बसेरा, लखां ही संगतां दर्शन करन आउंदियां। खालसे की ये भूमि है, खालसे की ये जन्म नगरी है श्री आनंदपुर साहब। असी वासी आनंदपुर साहब दे हाँ। सतगुरु ने किसी बगानी धरती का वसनीक नहीं बनाया, सानू अपनी धरती सानू बख्शिश की, अपनी धरती के उत्ते सानू वसाया। सो इत्थे जालमा ने बहुत वड्डा घेरा पाया होया है। 6-6 महीने के घेरे लगातार पे हुए, और खास करके आनंदगढ़ किले नूं बहुत वड्डा लखां दी फौज का घेरा है। जालम बादशाह औरंगजेब वालों बड़े भारी जबर और जुल्म किए जा रहे हैं। और समा कितना भयानक है कि किले के अंदर लंगर की रस्त भी मुक चुकी है। दिन किहड़े चल रहे हैं? पोह के दिन चल रहे हैं। अंतां दी ठंड है खालसा जी, लंगर की रस्त भी मुक चुकी है। इत्थों तक की हालत है कि जेड़े किले के अंदर दरख्त सन, उन्हां दियां छिल्लां खा खा के भी, पत्ते रगड़ के पी पी के भी, वो भी मुक चुके हैं। और औरंगजेब की लखां की फौज फिर भी आनंदगढ़ के किले नूं जित नहीं सकी, आनंदपुर साहब नूं अपने अधीन ना कर सकी। फिर औरंगे ने 22 धार पहाड़ी राजे निमक हरामी अकिरत घण बंदे, क्योंकि 22 धारियां नूं जहांगीर की कैद विचों धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले दे विचों इन्हां दे वड्डे राजियां नूं रिहा करवाया सी। जिस करके हजूर नूं बंदी छोड़ शरधा भावना दे नाल संगतां याद करदियां। बंदी छोड़ दाता सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी गई बहोड़ बंदी छोड़। इन्हां दे वडेरे बजुर्ग सन जिन्हां नूं उस किले विचों रिहा करवाया सी। जे सतगुरु जी रिहा ना करवाउंदे तां जहांगीर ने बागी समझ के इन्हां नूं जिउंदियां नूं भुखे मार मार के तड़फा तड़फा के उस किले विच ही
खत्म कर देना सी, इन्हां दा नामो निशान ही मिटा देना सी, पर इन्हां नूं बचाया, सुरक्षित किया। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का परोपकार। तां आपां कहने आ 22 धार दे पहाड़ी राजीए राजे ये जिहड़े अकिरत घन लोग जिन्हां ने सतगुरु जी के परोपकार नूं हिरदे विच नहीं वसाया बल्कि भुला दिता। तां ही कलगीधर पातशाह जी ने बचन कीते सन, पापी लोग पहाड़ दे पत्थर इन्हां दे चित, मूँह मलाजा रखदे भेत ना दंदे नित, पहाड़िए मित खिसके भत खाया खिसके, लंगर विचों आउंदे चौल प्रसादा छकदे ते फिर खिसक जांदे। जे कोई लोड़ पैंदी इन्ने मतलब प्रस्त सन, किसी भी सेवा विच किसी भी काम ना आउंदे, इन्ने खुदगर्ज लोग सन। औरंगजेब ने इन्हां नूं खरीदिया, अपने वजीर भेज के पैसे का लालच दिता, और पैसे के लालच विच आके इन्हां ने अपनियां फौजां भी भेज के आनंदपुर साहब के घेरे दे विच औरंगजेब का साथ दिता, औरंगजेब दीयां फौजां का साथ दिता। फिर इन्हां ने एक स्कीम बनाई, जदों औरंगजेब दीयां फौजां भी हार हक के थंब गईयां, थक गईयां, औरंगजेब नूं वजीरां ने चिट्ठी लिख के भेजी कि बादशाह सलामत, ये आनंदगढ़ का आकी किला साडे कोलों फतेह नहीं होना, भावें आपां कई बरस भी घेरा पाई रखीए तां भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं आपां जित नहीं सकांगे। जंग दे विच जूझ के आपां इन्हां नूं जित नहीं सकते कदे भी, इन्हां कोले बहुत वड्डी शक्ति है। इन्हां दा खालसा लख लख दे नाल एक एक सिंह जूझण वाला समर्था रखदा, इस करके कोई होर तरीका बनाया जावे। फिर औरंगजेब ने 22 धार पहाड़ी राजियां नूं खरीदिया, मुल खरीदिया पैसे दे के, उन्हां दियां फौजां ने भी मिल के घेरा पाया, हमले किए, फिर भी ना जित सके। अखीर फिर औरंगजेब ने छल खेडिया कि आपां एक बारी किला खाली कराइए जिमें किमें, ते उस तो बाद आपां कह देवांगे दुनिया विच भी असीं आनंदगढ़ का किला जित लिया। हुण किला जितण वास्ते बड़े छल ते धोखे रचे गए, तरह तरह दीयां बिउंतां बनाईयां गईयां, रोह विचार जदों कामयाब ना होए, अपने एलची अपने दूत सतगुरां कोले भेजते रहे, सतगुरु अगों इनकार करते रहे। तो साध संग जी अखीर फिर इन्हां ने ये तरकीब बनाई, ये मसलत की, मशवरा किया कि आपां किला खाली कराउण वास्ते अपने धर्म नूं भी दाअ ते लाइए। राजनीतिक बंदे धर्म नूं भी दाअ ते लाउण लग्गिआं गुरेज नहीं करते, अपने मतलब लई इन्ने खुद गर्ज अते धोखेबाज होया करते हैं। औरंगजेब ने अपना खास शाही काजी दिल्ली तो भेजिया, सोने के थाल विच कुरान रखी और कुरान रख के आनंदगढ़ के किले दे विच भेजिया गया। और सतगुरु जी के सन्मुख जदों शाही काजी गया और औरंगजेब की चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि सतगुरु जी एक बारी किला खाली कर दिओ, जिथे जाना चाहते हो जिथे मर्जी जाओ, जिथे रहना चाहते हो तुसी रह सकते हो, असी तुहाडे ते किसी भी तरह का अगे तो हमला नहीं करांगे, ना कोई घेराबंदी करांगे, ना कोई समय की हुकूमत तुहाडे उल्ट चलेगी, जिथे मर्जी खुशी खुशी रहो, बल्कि असी तुहाडी हर तरह की सहायता करांगे। अगर किला खाली करन वक्त साडियां फौजां भाव मुसलमानां दियां दिल्ली हुकूमत दियां फौजां तुहाडे ते हमला करन तां असी कुरान नूं अपने धार्मिक ग्रंथ नूं जिस नूं असी मनदे हैं कि अर्श तो उतरी हुई ये बाणी है, खुदा दी रचना है, सानू इस दी बेअदबी करन दा सब तो वड्डा पाप लगे। असी सौ खाने आ, ये सुगंध खाधी है सतगुरु जी दे सन्मुख। फिर 22 धारी पहाड़िए भी एक ब्राह्मण नूं शिंगार के लियाए, जिहदे तिलक भी लाया, जंजू भी पाया, तेड़ धोती भी है, और चांदी दे थाल दे विच गीता भी रखी हुई है, एक आटे की गां बनाई हुई है। उन्हें भी यह गल कही भी जे 22 धार पहाड़िए तुहाडे ते हमला करन तां नाल छुरी भी रखी है कि महाराज सानू गऊ का कतल करन जिन्ना सारियां नूं पाप लगे, गीता की बेअदबी करन जिन्ना पाप लगे। ये सौहां खाधियां।
जदों सौहां खा के गए सारे सिंह कहन लगे महाराज हुण तां ये अपने धर्म नूं अगे लिया के उहदी सौं खा चुके आ, हुण तां आपां नूं किला खाली कर देना चाहिए। महाराज कहंदे खालसा जी ये बड़े धोखेबाज बड़े छलिए बड़े कपटी लोग हैं, इन्हां दियां सौहां ते यकीन ना करियो। ਸਿੰਘਾਂ ने बहुता ही सतगुरु जी नूं बार बार बेनतियां कीतियां। महाराज ने चंगा एक कौतुक तुहानूं दिखाउंदे हां। सतगुरु जी ने रात के समय 22 धार पहाड़ियां की फौज नूं अते मुसलमानां की फौज नूं सुनेहा भेजिया कि अज रात नूं अद्धी रात नूं किला खाली करांगे, सारे रस्ते खोल दिते जाण। तां बैलां दे उत्ते गूणा लद के उन्हां दे विच जिन्ना भी किले दे अंदर लिद आदक मरे घोड़ियां दे हड्ड पशुआं दे हड्ड जो सन सारे उहदे विच पा के उत्ते सुनहरी दशाले पा के अगे मसाला बन के किले का आनंदगढ़ का दरवाज़ा खिला के जदों तोरे ना वो मसाला जगियां, मसालों के नाल रोशनी दे नाल सुनहरी दशालियां की चमक आसमान तक गई, हीरे जड़े हुए सन। तो इन्ने लोभ लालच दे मारे होए भज के उन्हां बैलों नूं पै गए कि गुरु का खजाना जा रहा, जिन्ना लुटिया जांदा लुट लो। जदों फड़ फड़ के बैलों नूं खच्चरां नूं अपने तंबूआं विच लैके आए तो जदों उत्तों दशाले चक्के तो विच लिद मरे पशुआं दे हड्ड, बहुत शर्मिंदगी होई इन्हां नूं। महाराज साहब ने सारे ਸਿੰਘਾਂ नूं किले दे उत्तों खड़ा के ये सारा दृश्य सारा सीन विखाया कि ये इन्ने कपटी इन्ने धोखेबाज लोग हैं। खालसा जी इन्हां ते यकीन ना करो। बड़ी शर्मिंदगी हुई। दूजे दिन मुआफिया मंगण आए, फिर अपने धार्मिक ग्रंथ लैके आए, धार्मिक चिन्ह लैके आए। सतगुरु जी ने उस वक्त सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया कि खालसा जी तुसी वेख लिया? कहन लगे हाँ सतगुरु जी तुसी सच कहंदे सी, गुरु नूं कोई छल नहीं सकता संसार दे विच, गुरु नूं कोई धोखा नहीं दे सकता। गुरु सर्वशक्तिमान सकला समर्थ है, अंतरजामी है, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। फिर इन्हों ने तरले करने शुरू किए। 6 महीनों के सिंह भुखे प्यासे दिन कट रहे हैं, शरीर भी कमज़ोर हो चुके हैं, शरीर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पिंजरे बन चुके हैं, पिंजरे। एक दिन ना रोटी खाइए साध संग जी प्राण मुट्ठी विच हत्थ विच आ जाते हैं। एक वक्त की रोटी ना खाओ बंदा सिर फड़ के बैठ जाता। तो 6 महीने हो गए लंगर नहीं मिलया, प्रसादा नहीं मिलया, छिल्लां खा खा के खालसा गुजारा कर रहा। उस वक्त सिंह कहन लगे महाराज दोबारा फिर पश्चाताप करना है। खालसा दयालु हुंदा, खालसे दे मन में हजूर सच्चे पातशाह रोपड़ वाल नूं आए है। अगों रोपड़ दे पापी पठाणा ने हजूर ते हमला कर दिता बड़ा भयानक। उस हमले का मुकाबला करके अगे गए ना जदों, तो रोपड़ शहर तो अगे जाके इट्टां दा तपदा जिहड़ा भट्ठा वो बहुत अग दे नाल तपिया होया, अग दियां लाटां उहदे विचों निकल रहीआं। ते हजूर ने किसी नूं पुछया कि भाई कोई जगह है इत्थे आराम करन लई? उदों तक शामां ढल चुकियां सन। एक शहर निवासी ने ताना मारिया हजूर नूं घोड़े ते बैठियां नूं, कहन लगा हाँ इन्ना मुलखैया मार के आ गए, हुण तुहानूं आराम चाहीदा, तुहानूं आराम चाहीदा। बचन कहे उन्हें पापी ने, कहंदा सामने जिहड़ा पट्ठा इहदे ते बैठ के आराम कर लो जे करना। ऐसा ताना मारिया हजूर ने, लाटां निकल रही विचों। हजूर सच्चे पातशाह अनंत शक्तियां दे मालक नीले घोड़े नूं उधर नूं प्रेरिया, कहन लगे चल बई नीलिया जालमां दी जुल्मी भट्ठी नूं जिथे ठारिया उत्थे इस भट्ठे नूं भी अज ठार दे। अगले पौड़ रखण दी देर सी, तबत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो पट्ठा ठंडा ठार हो गया। हजूर ने जदों घोड़े तो उतरे, भाई दया सिंह जी ने अपने कमर कसे का चादरा उत्थे विछाया। हजूर ने उत्थे बैठ के पहला कंघा किया साध संगत जी,
कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बांधई, दातन नीत करे ना दुख पावे लाल जी। दोनों वक्त केसां विच कंगा फेरना। अज सतगुरु जी कंगा करके दस्तारा सजाया, पंज इशनाना किया, फिर सोधर रहरा साहब का पाठ अपने मुखारबिंद तो आप किया। सारे खालसे ने सुनिया। तो निहंग खां जो कोटला निहंग खां का मालिक सी, छोटा सरदार सी, ये काबल कनार तो घोड़े खरीद के सतगुरु जी को आनंदपुर साहब लिजा के दिया करता सी। उन्होंने पता लगा कि मेरे माथे बैठे, चलो महाराज मेरी गढ़ी दे विच चरण पाओ। वैराग दे नाल अथरू केरदा सतगुरां दे घोड़े दियां बागां फड़ के साध संगत जी आप छोटे किले विच लैके गया। भाई बचित्र सिंह जी बहुत ज़्यादा फट लगे हुए है, शरीर तो पवित्र खून दियां धारां वग रहीआं, घरालां वग रहीआं। सतगुरु जी ने छेती देने किले विच जाके भाई बचित्र सिंह जी नूं पलंग ते लटाया, वैद मंगा के मल्लम पट्टी करवाई। थोड़ा ही समा सतगुरु जी इत्थे रुके है। निहंग खां नूं कहा, भाई तू भाई बचित्र सिंह की सेवा संभाल करनी। और के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने उदों दिन का छपा हो चुका सी, क्योंकि रहरा साहब के पाठ तो बाद की घटना है। तो उस वक्त एक अपने गात्रे की श्री साहब सुनहरी मुठ वाली, एक कटार, एक ढाल, ये तीन निशानियां भाई निहंग खां की झोली विच सतगुरु जी ने पाइया। निहंग खां ने वैराग किया, महाराज इत्थे ही रहो, तुहानू कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरी बड़ी फौज है, मैं आप जंग विच जूझ के बैरियां नू मार के मौत की घाट उतारांगा, तुहाडे तक नहीं आउण देवांगा, तुहाडे दर्शन मैनू नित चाहिए। ये बेनतियां कीतियां। हजूर कहण लगे, निहंग खां अमृत वेले इशनान करके नितनेम करके ना शस्त्रां नू धूफ दे के जोत जगा के मत्था टेकिया कर। इतिहासक निशानियां उत्थे सुभाएमान हैं। भट्ठा साहब, एक सतगुरां दी गात्रे दी श्री साहब वड्डी, एक कटार, एक ढाल, एक भट्ठा साहब। वो भट्ठा अज भी वो निशानी उवें ही है। सो साध संगत जी इत्थों सतगुरु जी अगे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नाल लैके बूर माजरे नगर विच गए है। इत्थे घोड़ियां नूं पानी पियाया, आप जल छकिया। बूर माजरे तो अगे दुगरी पिंड गए है। दुगरी पिंड साध संगत जी बार बार टिब्बी एक फकीर मिलिया मुसलमान, भज के सतगुरां दे चरनां नूं पै गया। कहण लगा, सालां दा तप करदा सी पातशाह, तेरे दर्शनां लई किरपा करो, मैनूं तार दिओ। सतगुरु जी दी कुल्ली विच उहदी झुग्गी विच गए है। उत्थे नमस्कार करके थोड़ा समा सतगुरु जी के चरणों की सेवा की, चरण घुट्टे नमस्कारां कीतियां। कहण लगे, फकीरा जेड़ा भी सिख इस स्थान ते आके नमस्कार करया करेगा, मन इच्छित दातां प्राप्त करया करेगा। उत्थों थोड़े चिर बाद ही सतगुरु चमकौर साहब चले गए। चमकौर साहब बाग दे विच सतगुरु जी ने आसन लाया। दो सिंह भेज के कच्ची गढ़ी दे मालकां नूं बुलाया। एक दा नां की है जगत सिंह, दूजे दा नां रूप चंद। जगत सिंह जिहड़ा राजपूत उन्हें गढ़ी देण तो इनकार कर दिता। दोनों भरावां दी गढ़ी सी, एक कच्ची गढ़ी है चमकौर साहब दी। मैं नाल बेनती करदिआं, एडा वड्डा इतिहास सी ये 7 दिनां दा। थोड़े चिर तो ही खालसे ने अपनियां छोटियां छोटियां इतिहासक निशानियां लभियां। 300 साल असीं वेसले ही रहे। और दुगरी पिंड का भी, बूर माजरे का भी, जदों माता जी ने सरसा दरिया पार करके सतलुज के किनारे किनारे आके जिथे पिलकण सी, उत्थे अज गुरुद्वारा पिलकण साहब, वो बिरछ अज भी है, उत्थे आके कुछ समय लिए रुके। उत्थों भाई कुमा माशकी अपनी झोंपड़ी दे विच साहबजादियां नूं माता जी नूं नाल लैके गया। सो रूप चंद ने हथ जोड़ के कहे, महाराज मेरा हिस्सा हाजिर है। उन्होंने 5 रुपए अपने कमर कस्से विचों चांदी दे सतगुरु जी ने दिते। उन्हें अपना हिस्सा सतगुरु जी नूं 5 रुपए लैके दिता। दूजे ने डरदे ने इनकार कर दिता। फिर कड़ी विच गए है। 7 पोह की रात पै चुकी है। अज इतिहासकार पता नहीं किहड़ी दुनिया दे विच ऐसे लोग रहिंदे है। गुरु की समर्था नूं जानण तो बड़े अज्ञानी मैं समझांगा, बेसमझ भी है और खोटे मना दे भी है। साध संगत जी कलगीधर दी रचना है विच जफरनामा, उहदे विच महाराज आप
अपनी कलम दे नाल लिखदे आ गुरसने चेकारे कुनद चेह नर के दह लख आयत बरो बेखबर कि गुरु साहब दे नाल केवल भुखे प्यासे 40 सिंह सन ते दिल्ली तो जिहड़ी 7 पोह शाम नूं ही फौज हमला करन लाई ना वो 10 लाख की फौज सी 10 लाख की फौज चमकौर की कच्ची गढ़ी नूं घेरा पाउण वाली ते जिहड़ी 22 धारियां दी वजीदे दी लाहौर दे सूबे दी पेशावर दे सूबे दी इन्हां दी फौज जिहड़ी सी वो भी साध संग जी घट्टो घट 12-13 लाख तो उत्ते सी। इस करके 22 लाख का घेरा चमकौर साहब नूं पिया होया सी इन्हां दिनां विच 22 लाख का घेरा और रात में जंग शुरू हो गया। कोई आराम नहीं, कोई प्रसादा नहीं, कोई जल पानी नहीं और 8 पोह की सवेर हुई है। धन बाबा अजीत सिंह जी हजूर के चरणों में आए, पिता जी आग्ञा दिओ जंग में जाण दी। सतगुरु जी ने शस्त्र सजाए, कमर कसा किया, अरदास करके नाल 5 प्यारिਆਂ विचों भाई हिम्मत सिंह साहब जी और भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी गए हैं, कुछ कदमां ते अगे गए है। ऐसा घमसान का युद्ध किया धन बाबा अजीत सिंह जी ने। 8 पोह की दोपहर तो पहला पहला धन बाबा अजीत सिंह जी की शहादत हो गई है। शरीर का 1 इंच भी थां नहीं जिथे वैरियां दे वार नहीं लगे हुए, तलवारां दे, बरछियां दे, बंदूकां दियां गोलियां दे। और थोड़े समय बाद ही बाबा जुझार सिंह जी आए। उम्र कितनी है? 14 साल की उम्र है। हसन हुसैन नाल साहबजादियां दा सुमेल ना करया करो। कई इतिहासकार हसन हुसैन नाल साहबजादियां दे इतिहास की मुलांकन करने वाले तुर पैंदे, उन्हां दे नाल इह मुलांकन नहीं हो सकता। 14 साल बाबा अजीत सिंह जी की 16 साल, बाबा जुझार सिंह जी की 14 साल की शरीरक अवस्था है। सो बाबा जुझार सिंह जी भी 8 पोह की दोपहर तक वो भी शहीदी पा गए। 3 प्यारे शहीदी पा गए, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। हुण केवल मगर 8 सिंह बचे आ। 8 सिंघां विच कौन है? भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई संत सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई मान सिंह जी और 6वां भाई मदन सिंह, 7वां भाई मदन सिंह, 8वां भाई कोठा सिंह। सतगुरु जी समेत 8 शरीर हैं। 5 सिंह खड़े हुए 8 पोह की शाम नूं। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, भाई मान सिंह की बेनती की, हजूर ये चमकौर की कच्ची गढ़ी नूं छड्ड दिओ, साडी बेनती है। तुसीं शहीद हो गए, खालसा पंथ सदा लई समाप्त हो जाएगा। तुसीं रहोगे तो यह खालसा पंथ दुनिया में प्रफुल्लित रहेगा। तुहाडा नादी पुत्र है महाराज, तुहाडे बिंदी पुत्र। तुसीं अमृत छकण वेले वचन दिते सन, मैं सारा सुरबंस वार देंगा। पिता भी शहीद करा लिया, वड्डे भी लाल शहीद हो गए। और महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ये वचन कहते होंदे सन, जदों बाबा अजीत सिंह जी शहीद होए ना, चमकौर की गढ़ी की अटारी के उत्ते खड़ के सतगुरु जी ने गज के जकारा गजाया। अपने लाल की शहादत होंदी नूं वेख के जकारा छड्डिया सी हजूर ने। हसन हुसैन की शहादत नूं वेख के मुहम्मद साहब तिलमिला गए सन, पर कलंगियां वाला सतगुरु अपने साहबजादियां की शहादत नूं वेख के जकारे छड्ड रहा। और बाबा जुझार सिंह जी की शहादत नूं वेख के भी हजूर ने जकारा छड्डिया गज के। किसी सिंह की शहादत नूं वेख के जकारा नहीं छड्डिया। 2 साहबजादियां की शहादत होंदी नूं वेख के जकारे छड्डे आ। और एक एक तीर हजूर ने 10-10 हज़ार वैरियां दे सीने दे विच दी कढ़िया। चमकौर दे जंग विच एक तीर मारते सन, 10-10 हज़ार वैरी धरती ते डिग पैंदे सन मर के। उस वक्त ऐसी सूरबीरता दुनिया के इतिहास में अर्जन के भी धनख ते तीर मन्ने हैं, पर कलंगियां वाले सतगुरु के तीर, कलंगियां वाले सतगुरु के धनख दा दुनिया के इतिहास में ना कोई सानिया ना कोई हो सकेगा। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 100 मारिया होगा,
पर एक एक तीर 10-10 हज़ार वैरी के सीने विच परो दिता। एडी वड्डी सूरबीरता और 6 महीनों के भुखण भाने सिंघां दे नाल ऐसी सूरबीरता दिखाई है। सिंघां दे बेनती करन तो हजूर ने खालसे नूं इतिहास विच भाई संत सिंह जी का जिक्र आउंदा, भाई संगत सिंह जी का, उन्हां नूं हजूर ने कलगी जगह तोड़ा दे के खालसे नूं गुरु रूप बना के ये खालसाई गुरियाई की दात बख्श के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी उस वक्त फिर भाई दया सिंह, धर्म सिंह, भाई मान सिंह तिन्हां नूं वचन किया कि खालसा जी जदों असीं गढ़ी विचों जावांगे, माछीवाड़ा साहब की तरफ नूं जाण दा इशारा किया। साडा इक्को ही निशानी है कि ध्रुव तारे की दिशा की सेध विच तुरे आउणा तुसीं। महाराज जी ने आसमानी निशानी दसी, आसमान में जोड़ा ध्रुव तारा ना ये सदा स्थिर है, क्यों इन्हें भगती करके रुतबा प्राप्त किया। ध्रुव तारे की सेध में तुरे आना, अगे तुहानूं लभ पवांगे। असीं अकले सतगुरु जी तुरे है तो गढ़ी दे विच जोड़ा ला दिता हजूर ने। जदों साहबजादियां दे शरीर दे कोल दी लंघे है, बाबा अजीत सिंह जी का शरीर पिया शहीद होयां दा, ते अगे कुछ विथां ते बाबा जुड़ार सिंह जी का शरीर पवित्र पिया। कोई वस्त्र नहीं पाया अपने साहबजादियां दे शरीर उत्ते कि तन ढक दिए, नहीं नहीं। पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, ये इतिहासक पंक्तियां नूं दोहराउंदे होए सतगुरु जी अगे चले गए। जिथे ताड़ी साहब उच्ची टिब्बी है, इत्थे खड़ के फिर हजूर ने गज के जकारा छड्डिया और ये बचन कहे, पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद। कहते रवाना हो रहे हैं, जे किसी की हिम्मत आके फड़ लो सानू, जे कोई फड़ सकता। ये ना आखियो असी चुप कीते गुप्ती इत्थों भज गए दौड़ गए, असी ललकार के जा रहे हैं, किसी की हिम्मत है जुरत है सानू हथ पा लो आके, जे कोई पा सकता। इउं सतगुरु महाराज जी ने उत्थों जाना किया और 40 सिंघां दीयां शहादतां होईयां और इन्हां सिंघां दे पवित्र शरीरां दा संस्कार अगले दिन 9 पोह नूं भाई राम सिंह, भाई तलोक सिंह, बीबी शरण कौर, बाबा राम सिंह पटियाले रियासत के वड्डे बजुर्ग होए है। भाई राम सिंह नाभा रियासत के वड्डे बजुर्ग होए, जिन्हां नूं तख्त दमदमा साहब हजूर ने खंडे का अमृत छकाया सी। पहला रामा ते तलोका कहा जाता सी। ये वजीदे के पास सरहंद अपना टैक्स देन आए सन अपनिया रियासतों का। पता लगा वजीदा चमकौर की धरती ते लखा फौज लैके गया। जदों आके वेख्या अजकल के साधन नहीं सन के घेरा पिया, इत्थे तां भाणा ही होर वरत गया, गुरु महाराज दे लाल शहीद हो गए है। फिर वजीदे पास नहीं गए, साहिबजादियां दे 5 प्यारिਆਂ चों 3 प्यारिਆਂ दे 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ एक एक शरीर लभ के इकट्ठे किए। बीबी शरण कौर नाल है, भेस बदला के लखां दी फौज के घेरे विचों ते लखां ही जालमां दियां लोथां विचों एक एक सिंह दा शरीर लभ्या। खालसा जी किड्डी वड्डी महान सेवा, किड्डी वड्डी कुर्बानी इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी। और जिथे गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब है, इत्थे लिया के सारे शरीर इकट्ठे करके अद्धी रात नूं संस्कार किया। जपजी साहब का पाठ करके, कीर्तन सोहले का पाठ करके। ये बहुत वड्डी इन्हां बजुर्गों की कुर्बानी ते सेवा है। कलगीधर पातशाह रागी सिंह शब्द पढ़ रहे सन ना, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, ये शब्द का गायन कर रहे सन जदों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह उत्थे पहुँचे हैं। सो इस तो अगे इतिहास जे सुनावांगा बहुत समा लगेगा। आओ हम फतेहगढ़ साहब वाल नूं आइए, छोटे साहबजादियां दी किवें शहादत हो रही है। सरसा दरिया के किनारे ते जिहड़ी पिलकना, उत्थे माता जी ते दोने साहबजादे बैठे है ढोल आके। काए भाई कुम्मा माशकी उत्थों माता जी नूं ते साहबजादे नूं अपनी कखां दी छपरी विच लैके जांदा अद्धी रात नूं। ये 7 पोह दी अद्धी रात पै गई है। लिजा के साथ संगत जी अपनी फटी पुरानी कंबली साहबजादियां ते माता जी दे थल्ले विछा दिंदा। उत्थे कोई पलंग नहीं लगे सन, गरीब दी कुखां दी कली विच
केवल विचारा सतलुज के किनारे ते बेड़ी लिजा के मलाह बन के लोगों को पार करता, जिहड़ा कोई 2-4 पैसे बनते उहदे नाल ही गुजारा करता सी। भाई कुम्मे माशकी की माँ ने रुखा मिस्सा प्रसादा बनाया, साहबजादियां नूं माता नूं छकाया। और फिर 8 पोह की सवेर नूं नेड़े एक तानो माता लक्ष्मी ब्राह्मणी नूं पता लगा, जिहड़ी गुरु घर की पुरानी सेवक सी, वो अपने घरों प्रसादा बना के लैके आई। बड़े प्रेम दे नाल उन्हें माता जी नूं ते साहबजादियां नूं वो प्रसादा छकाया, सेवा की। भाई कुम्मे माशकी ने सारी रात साहबजादियां की सेवा विच हाजिर रहे। हुण 8 पोह की शाम पै गई है। पापी गंगू ब्राह्मण आ गया, सहेड़ी नगर का रहन वाला। खालसा इनू पहला उखेड़ी नगर कहंदा सी, खेड़ी नहीं कहंदा सी, उखेड़ी पिंड ऊड़े दे नाल। सहेड़ी तां इहदा नाम पाया सी, सिंघां ने पहला इहदा नाम खेड़ी सी कि गंगू ने एडा वड्डा पाप सहेड़िया, अपने सिर ते पाप लिया, साहबजादियां नूं गिरफ्तार करा के शहीद कराउण दा, तां सिंघां ने इहदा नाम सुहेड़ी पाया होया सी। सो गंगू ब्राह्मण आया, साहबजादियां नूं माता जी नूं क्यों पहला तो जानदा सी, आनंदपुर साहब जांदा, उत्थों राशन पानी माया मंग के लियाउंदा। ये रसोईया नहीं सी जिहड़ा आपां कह दिंदे आ कि रसोईया सी। कुछ इतिहासकारां ने लिखिया गंगू ब्राह्मण मसंद सी, रसोईया नहीं सी गुरु घर दा। ये ख्याल रखना, मंग के लियाउंदा, खा पी के गुरु घर दा निमक गुजारा चलाउंदा सी, और बड़ा सोहना गुजारा चलाउंदा सी। पक्का घर सतगुरु जी ने धन दे के इनू बनवाया ते रहण लई बसेरा बनाया, कोई कमी नहीं सतगुरु ने छड्डी सी। पर पापी बंदा धन दे लोभ विच आके पता करदा करदा भाई कुम्मे माशकी दी छन विच गया। ये ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਸਥਾਨ ਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਕਣਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਪਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਚਵਰਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਲੇਹਜ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ, ਮਸਰੀ ਕੀ ਕਰੀ ਦਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਸਾਤੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ। ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾੜੀ, ਰਾੜੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਉਹ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੇਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਭੋਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਦਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸੀ।
दो पतासे गंगू एक सोने की मोहर के बदले लैके आया। वो पतासियां नाल भोर भोर के माता जी ने थोड़े जे दो दो टुकड़े साहबजादियां नूं छकाए। उस तो बाद रात नूं माता जी दे धन दी खुरजी चरा लई। पापी ने मन बेईमान हो गया। उस तो बाद माता जी ने पूछा, है गंगा राम, नाम गंगा सी ना, गंगा राम, गंगा राम जे तैनूं धन की लोड़ है मंग के लै लै। साडी धन की खुरजी सी, जे लुकाउणी सी तो सानू पुछ के कोलों लै लैंदा, असीं तैनूं आप ही दे दिंदे आ। जे लई भी है तू दस दे, तेरी हो अज तो बाद असीं नहीं लैनी वापस। ऐसी त्याग वैराग माता जी की मूरत साफ मुनकर हो गया। पापी उल्टा ताने मारन लग पिया, कपड़ियां तो बाहर हो गया। कहन लगा, तुसी सरकार दे बागी, तुहाडे सिरां ते इनाम रखे। जे समय की हुकूमत नूं पता लग गया मेरे परिवार नूं कोलों विच पीड़ के मार देणगे। एक मैं तुहानूं रैण बसेरा, दूजा मेरे ते झूठी तोहमत, तुहानूं हुण इस दी सज़ा देंगा। कहंदा कहंदा माता जी ने बहुत समझाया। इत्थों तक भी दुन्ना सिंह जी ने लिखा, माता जी घर तो बाहर आए, गली तक हाथ जोड़े गंगू दे अगे, कहन लगे, गंगा राम जे तू नहीं भी चराई, जे तू चराई तां भी तेरी, तू इस तरह ना कर अज। पर पापी कठोर हिरदे वाला, गुरु घर का निमक खाण वाला पापी, जिहदा मन पाप नाल भरिया, साध संगत जी मोरंडे चले गया। जानी अते मानी खां कोले शिकायत की। साहबजादियां नूं गिरफ्तार करने वास्ते फौज आई है। उत्थों नगर के इलाके के लोगों नूं पता लग्या, उन्होंने एक गड्ढा तैयार किया। गड्ढे च माता जी नूं साहबजादियां नूं बिठा के बरंडे विच लिजाया गया। उत्थे गुरुद्वारा सीसगंज साहब बाहर उत्थे खूह अज हैगा, वो छोटी इट्टां दा, उत्थे साहबजादियां नूं जल छकाया गया। फिर कोतवाली दे विच 9 पोह की रात नूं नज़रबंद करके रखा गया। वो कोतवाली शुक्र है गुरु साहब की कृपा, साहबजादियां दी। मरंडे विच जाओ तो गुरुद्वारा कोतवाली साहब जरूर जाके आओ। उवें वो छोटी इट दियां कंधां, उवें वो लोहे का दरवाजा जिहदे विच साहबजादियां नूं नज़रबंद किया होया सी। उत्थों फिर वजीदे नूं खबर दिती गई। 10 पोह की सवेर नूं फौज वड्डी गिणती विच आई। थां पर थां लोगों की भीड़ देखण आ रही है कि साहबजादे छोटे गिरफ्तार कर लए गए हैं। उस तो बाद साध संगत जी सरहंद की जूह दे विच जदों साहबजादे माता जी गिरफ्तार करके लिजाए गए, वजीदे नूं खबर दिती गई। वजीदे ने हुक्म सुना दिता, ठंडे बुरज विच लै जाओ। बड़ा अफसोस नाल कहना पैंदा, दास ने वो पुरातन वो असली बुरज दे मैं दर्शन किए है। पर ये गल कहण तो मैनूं गरोज नहीं, कार सेवा के नाम ते वो ठंडे बुरज का मलिया मेट कर दिता गया। साध संगत जी वो चूने की इट विच छोटी इट का बनिया असली बुरज जिहड़ा असीं ढाह के नवां भावें बनाता, पर वो असली जिहड़ा सी ना, वो बुरज की अज निशानी सानूं पुरातन नहीं मिलेगी कदे भी। वो पुरातन जिहड़ी पुरातनता वालियां यादगारां सन, वो साडे कोलों मिटा दित्तियां गईयां। बड़ा अफसोस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा साडी भी वड्डी अणगहली है, पंथ की भी वड्डी अणगहली है। सारिਆਂ ने अणगहली की है, किसी ने ध्यान नहीं दिता। सो साध संगत जी बुरज विच, और बुरज कितनी भयानक जगह, हंसला नदी आले दुआले वग रही है। और समय के हाकम जेठ आड़ के दिनों में उस बुरज विच बैठिया करते सन, तो उन्होंने एसी वर्गी ठंडी लवा हवा उत्थे लगती सी। ते पोह दियां रातां, पोह दे दिन साहबजादियां नूं उत्थे गिरफ्तार करके कैद रखा गया। 10 पोह का दिन लंघिया। दीवान भाई मोती राम मेहरा घरों दुध लिया के घर दी दे गहने रिश्वत विच दे के माता जी नूं ते गुरु के लाला नूं दुध छकाया। 11 पोह की सवेर हुई। वजीदे ने कचहरी विच बुलाया साहबजादियां नूं, माता जी नूं कह के माता जी नूं बुरज विच ही रखा गया। ठंडे विच साहबजादियां नूं कचहरी विच बुलाया। जदों साहबजादे गए, धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी गज के फतेह बुलाई, सिर नहीं झुकाया। वजीदे ने बड़े लालच दिते। दुन्ना सिंह जी तो इत्थों तक लिखते हैं, फिर बाहर ना कहते मठियाई दियां ते खिडौणियां दियां दुकानां ते भी साहबजादियां नूं भी देख के आओ, इन्हां दे अंदर कोई बागियां वाली सोच तो नहीं है।
जे बच्चे होणगे मठियाई खरीदणगे, जे अणख शूरवीरता गैरत वाले होए तो शस्त्रां नूं हत्थ पाउणगे। तो साहबजादे ने जाके शस्त्रां नूं चुकिया। फिर 12 पोह दी सवेर हुई है, साहबजादिਆਂ ਨੂੰ दूजे दिन कचहरी विच बुलाया गया। उस दिन की किया, पहले दिन साहबजादिਆਂ ने बादशाह जिहड़ा मौके का हाकम सी वजीदा उन्होंने नमस्कार नहीं की। सुच्चा आनंद झूठा आनंद ने कहा, साहबजादिओ बादशाह नूं सलाम करो। इतिहासकार लिखते हैं भाई दुन्ना सिंह बाबा फतेह सिंह जी कहते, साचे साहिब को सलाम किया, किसी मनुख को सलाम करना नहीं। कहते सच्चे साहिब को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सिर झुकाने हैं, किसी मनुख अगे सिर नहीं झुकावांगे। धन बाबा फतेह सिंह साहब, सारे आखो धन बाबा फतेह सिंह साहब जी। उन्होंने नमस्कार भी करिए आपां उन्हां दे चरनां ते। सो खालसा जी उस वक्त दूसरे दिन कचहरी का दरवाज़ा बंद करके छोटी बारी बनाई गई कि छोटी बारी दे विच जदों आउणगे ना, पहला सिर झुका के लंघणगे ना, तो आपां ताड़ियां मार देंगे कि साहबजादिਆਂ ने बादशाह के सिर झुका था, इन्हां दी जान बख्शी कर दी जाए। ये गल ये ब्योंतबंदी बनाई गई है, साजिश घड़ी गई। पर तानो महापुरख ब्रह्म ज्ञानी घट घट के अंतर की जानत, असली संत असली ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी महापुरख जदों जालम घेर के लैके जा रहे हैं ना, गढ़ी का दरवाज़ा उपरला बंद है। पहले दिन सारा खोलिया, दूजे दिन सारा बंद है। ताकी खोली, अगे गए, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी पिछे हट गए, पिछे कदम कर लिया। धन बाबा जोरावर सिंह जी ने अपना सज्जा कदम साध सिंह जी ऐ थल्ले नूं बैठ के सीधा शीस रखिया, सीधा अपना शीस रखिया, थल्ले नूं सीधा शीस रख के अपना अगला कदम सज्जा चरण अगे रख के सिर नहीं झुकाया, सीधे सीधे अंदर गए। तो बाबा फतेह सिंह जी भी उस तरह गज के फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जालमां दे मनसूबियां ते पानी फेर दिता गुरु के लाला ने, तानू ना महापुरखा ने बड़े लालच दिते गए, डराया गया। बहुत वड्डा इतिहास है, समा नहीं आग्या दे रहा। दूसरे दिन भी बड़िया ब्योंतां बनाईयां गईयां। सुच्चानंद वर्गे पापी ने उस वक्त शब्द कहे सन, जमदियां सूलां दे मूँह तिखे, ताई खालसे नूं को के मार के सजा दी ने, गवाही दी। सो साध संगत जी तीजे दिन अज 12 पोह की रात है। अज आप रात के समय विच है। माता जी ने गलवकड़ी विच लैके साहबजादिਆਂ नूं जपजी साहब का पाठ सुनाया। उस तो बाद माता जी ने सारा इतिहास सुनाया साहबजादिਆਂ नूं, धन गुरु अर्जन देव जी का, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का सारा इतिहास। तां मैं बेनती की इतिहास सुनाया करो बार बार। साहबजादिਆਂ नूं अज सारी रात माता जी इतिहास सुनाते रहे कि साहबजादिओ माता जी ब्रह्म ज्ञानी सन के कल नूं माता जी नूं पता साहबजादिਆਂ ने शहीदी दे देनी है। माता जी सारी रात बचन सुनाते रहे और उस वक्त सवेरे उठे, साहबजादिਆਂ का कंघा किया, दस्तारां सजाइयां, साहबजादिਆਂ ने फतेह बुलाई माता जी। बाबा फतेह सिंह जी फतेह बुला के एक बारी पिछे जाके फिर मुड़ के आए माता जी के पास। महापुरख सुनाया करते सन। माता जी कहन लगे, बाबा फतेह सिंह जी पिछे क्यों मुड़ाए, कोई मौत का भै? कहन लगे नहीं माता, शरीर का बिलाप अज अखीर ला, शरीर की अज शरीरक करके फतेह प्रवान करियो। शरीर करके तुहानू अज फतेह बुलाउण आया दोबारा, शरीर करके अज शाम नूं दोबारा फतेह नहीं बुलाउण आवांगे। इस करके साडे सरगुण स्वरूप दी, साडे शरीर दी अखीरली फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह प्रवान करो। माता जी ने मत्था टेकिया बाबा जी।
फिर बड़े तेज कदमी तुरे दोनों साहबजादे, बहुत तेजी नाल तुरे। चलते चलते जो कचहरी विच गए, सारा मनसूबा तैयार सी, नींह तैयार है, साहबजादियां नूं नीहां दे विच खड़ाया गया, बड़े लालच दिते गए, डराया गया, रो विचार। दोनों साहबजादियां ने जपजी साहब का पाठ आरंभ किया। पंज प्रवान पंज प्रधान की पौड़ी ते जो जपजी साहब का पाठ गया, गोडियां तक कंध आई, गोडियां तक। विशाल बेग सुशाल बेग वजीदे नूं पुछदे है कि कंध बिंगी हो रही है, गोडियां कोलों जोड़ आ गया, की करिए दसो, कंध चौड़ी कर दी, इट्टां दो रख के। कहन लगा नहीं, इन्हां दे गोडे छांग दो मार के तलवार। दोनों साहबजादियां दियां चपड़ियां ते तलवारां मार के गोडे ला दिते गए। पर जपजी साहब च कोई फर्क नहीं है, ना वो मरे ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे। गल गल तक कंध आई है, इत्थों तक दोनों साहबजादियां दी। उस वक्त जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। जदों ये पौड़ी दियां अखीरलियां पंक्तियां पढ़ियां, सलोक दियां पंक्तियां पढ़ियां, फतेह गजाई, आवाज़ आउणों हट गई। जालमा ने वेख्या कि साहबजादियां दा साह घुट चुका, शायद शहीदी पा गए है। दीवार अपने आप डिग्गी, नाल ही शरीर डिग पे। एडा वड्डा जुल्म किया, एडा वड्डा जुल्म जालमा ने गोडियां विच लैके खंजरां दे नाल साहबजादियां दे जेड़े धड़ नालों सीस अलग कर दिते। भाई दुन्ना सिंह कहंदे जदों बाबा जो उन्हां दे इतिहास विच शब्द आउंदे है कि जदों बाबा जोरावर सिंह जी दा सीस धड़ नालों अलग किया, वो तो उदों ही अकाली बाणा पहन गए, सचखंड नूं चले गए। बाबा फतेह सिंह जी एक घड़ी तक उन्होंने शरीर तड़फदा रहा। शरीर मैं बेनती कर दिया, ऐ चरण वजदे रहे धरती दे उत्ते। चरण क्यों मारे कि जालमो तुहाडियां जड़ां पुट दित्तियां इस धरती तो जुलमी राज दियां। इत्थे जिहड़े अज साडे चरनां दियां अड्डियां वज रहीआं, इत्थे खालसे दा राज होएगा। हुण साडियां अड्डियां इत्थे खालसे दे निशान चला देणगियां इस धरती दे उत्ते। ये कारण सी साहबजादियां दे चरण धरती ते बार बार मारन दा कि खालसा पंथ दी जिहड़ी जड़ है पताल दे विच पक्की ला दित्ती है, ये ला के जा रहे। इउं शहादत होई छोटे साहबजादियां दी। फिर साहबजादे माता जी कोले पवित्र रूहां गईयां बवान दे उत्ते, ते माता जी नूं गज के ठंडे बुरज विच फतेह बुलाई। माता जी कहन लगे साहबजादिओ तुहाडे दर्शन नहीं हो रहे, शरीर दे आवाज़ आ रही है। कहन लगे माता जी अकाल को बाणा पहन लिया सी, सचखंडी बाणा पहन लिया, हुण सचखंड नूं जा रहे हैं, दादे सतगुरु दे चरनां विच, पड़दादे सतगुरु दे चरनां विच। माता जी ने कहा साहबजादो तुसी चलो, असी भी मगरे आए। उदों ही माता जी ने जपजी साहब का पाठ आरंभ करके दसम द्वार थानी अपनी ब्रह्मरंदर नाड़ी फोड़ के माता जी भी शहीदी पा के सचखंड नूं चले गए। क्यों छोटे साहबजादियां दी 13 पोह नूं शहादत हुई है। बहुत वड्डा इतिहास है। दीवान भाई टोडर मल की कुर्बानी भी सानू याद रखनी चाहिए है, जिन्हों ने ज्योति स्वरूप साहब वाली थां वजीदे कोलों सारा घर का धन, कौन एडा वड्डा अमीर बंदा 1 रुपया नहीं दिंदा बिपता विच बंदा, जिन्ना घर विच धन सी साध संगत जी सारा लिया के ढेरी कर दिता। वजीदा कहना लम्मियां पाइयां मोहरां नाल ही खड़ियां कार खड़ियां तां तैनूं जगह मिलनी है साहबजादियां ते माता जी दे संस्कार लई। माता जी दे संस्कार लई भी जगह अलग, साहबजादियां दी भी संस्कार लई जगह अलग। पहला माता जी का जिथे समाधा बनया वो अलग है ज्योति स्वरूप साहब के नाल, वो जगह पूरी हो गई मोहरां नाल। जदों साहबजादियां दी जगह मिणदियां मिणदियां थोड़ियां मोहरां घट गईयां। ये बचन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ने सुनाए है। कहंदे जदों मोहरां घटियां वजीदा कहन लगा हुण की करेगा, तेरे कोले रह की गया, सब कुछ आ गया, पूरी थां कीती तो बिना जगह नहीं मिलनी। भाई दीवान टोडर मल कहन लगा मेरे को बहुत कुछ बचिया।
कहने लगा फिर दस। गल विच पल्ला पा के फिर दीवान टोडर मल ने अरदास की। कहने लगा हे साहबजादे माता जी, मेरी जिथे तक मनुखी शरीर की समर्था सी मैं अपना तान ला लिया, हुण मेरा वस नहीं। मेरी पत तुसी ढको, मेरी लाज तुसी रखो, मेरी सेवा ना अधूरी रह जाए। मेरा तरला साहबजादे माता जी तुहाडे चरनां विच मेरी अज इज्जत रख लो, मान रख लो, मेरी पत ढक लो। कहते ऐ कह के जो मत्था टेकिया ना, अरदास दा मोहरां हिलियां, अपने आप ही सारा थां भर गया। ये सब ये साहबजादियां दी महान शक्ति संस्कार दे समय उन्हां दी अकाली शक्ति वरती है। सो भाई शेर खां मुहम्मद शेर खां नवाब जो मलेरकोटले का, उन्होंने भी याद रखना बनता, जिसने हा दा नारा मारिया। सो ये भाई साहबजादियां दा इतिहास ही संखेप विच आप जी ने सुनिया। श्री मुखबाग की कथा सुनो। समा बहुत अगे हो गया, पर तुहाडी एकाग्रता करके दास नूं कहा भी सी कि जिन्ना समा होया ला लियो। सो इस करके इतिहास ये वड्डा ही तो वड्डा है। मैथिली शरण गुप्ता ने बड़े सुंदर शब्द लिखे है। जिस कुल जात वर्ण के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महा। साहबजादियां ने मैं पहला बेनती की सी, इस हिंदुस्तान के अंदर अज जिहड़ा सारे धर्मां की सांझी वालता का बगीचा खिड़िया ना, सांझी वालता का, जां सारे संसार विच ही सांझी वालता का सारे धर्मां का बगीचा लगा ना, इस बगीचे की जड़ विच साहबजादियां दे पवित्र खून की रत पई हुई है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र खून की रत पई हुई है। नहीं तो साध संगत सांझी वालता सारे धर्मां की सांझ सदा लई कदों की खत्म हो जानी सी। सो ये महान कुर्बानियां हैं साहबजादियां दियां। आओ सुनो प्रेम नाल 2-4 मिनटां में आए श्री मुखबाग की कथा आप आखिरी अर्थ करके समाप्ति करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा। चौथे पातशाह सोरठ रागनी में धन श्री गुरु रामदास साहब जी कृपा कर रहे हैं। पंचपदा 5 पौड़ियां वाला शब्द है साध संगत जी, क्योंकि दादे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी, पड़दादे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी और उन्होंने पिता श्री गुरु रामदास साहब जी, ये वो कृपा करके श्री मुखवाक बख्शिश कर रहे हैं। अचर चरता सिद्ध होई। अचर चरता सिद्ध होई, चर नाम चलन का है, तुरन का है। जेड़े पासे नूं मन नहीं चलता सी ना, संगत की कृपा नाल वो पासे नूं चल पिया, तुर पिया। औगणा वालों मन चरदा सी, औगणा नूं वो औगणा वालों चरण तो हट गया, अचर हो गया। बहुत अर्थां ने इस पहली पंक्ति दे रहो विचार। सो अचर चरै तां सिद्ध होई, चलदा चलदा मन, भटकदा मन, वकारां विच भटकदा होया मन जदों वाहिगुरू दे नाम विच जुड़ गया तो अचर हो गया, फुरने तो रहत हो गया, संकल्पां तो रहत हो गया, वकारां तो रहत हो गया। सिद्धि ते बुद्ध पाई। फिर सिद्धि मुक्ति की दात प्राप्त होई, ज्ञान की दात प्राप्त होई। प्रेम के सर लागे तन भीतर। जिन्हां दे हृदय विच प्रेम दे तीर लग गए ता भ्रम काटिया जाई। जदों उन्होंने सिद्धि की नाम की दात प्राप्त की, गुरु दे दर तो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, तो उन्होंने भरम ज्ञान कटिया गया है। मेरे गोबिंद अपने जन को देह वडियाई। ये मेरे गोबिंद वाहिगुरू अपने जना नूं ये वडियाई तुसी बख्शण वाले हो कि उन्हों का मन भटकदा होया चरण तो रहत हो जाता, अचर टिक जाता है, एकागर हो जाता है। 9 निधियां 18 सिद्धियां उन्होंने चरणों में आ जांदियां हैं। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दात प्रेम के तीर उन्होंने हृदय विच लग जाते हैं, टिक जाते हैं। गुरमत राम नाम परगस हो। ये वडियाई देव सच्चे पातशाह अपनी गुरमत, अपना वाहिगुरू परमेश्वर का नाम साडे हृदय विच प्रगट हो जाए। साहबजादियां दे चरणों विच भी ये बेनती करनी, एवें ना जने खुणे कोले
ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਪਣ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਰਿ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਇਹ ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਰੁੜ, ਜਿੱਧਰ ਰੋਣਾ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਨੂਪਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ, ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਲਖ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਲੱਖ ਨਾਮ ਜਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਣਾਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ, ਗੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਖੋਪਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਲੁਕਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਜਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਨ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਏ
मन निमाणी एक तू। साहबजादे तुहाडे तो बिना भी साडा कोई आसरा नहीं है। लोक प्रलोक दे तुसी साडे आसरे ते रखे हो। ये अरदासां करनियां भुलां चुकां गुरु महाराज गुरु की संगत खिमा करे। भाई साहबजादियां दी याद विच बैठे हो, जिन्हां कोलों हो सके कल नूं जपजी साहब का पाठ साहबजादियां दी याद विच जरूर करके अरदास करनी है। आपां दिने 12 बजे लगभग दोपहरे साहबजादियां दी शहादत हुई है। ये साध संगत जी दो समय तो तीजा साहबजादियां दा समा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत सवा पहर अमृत वेले हुई। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत 12:24 ते और साहबजादियां दी भी दोपहरे 12 बजे शहादत हुई है। ये तीन समय गुर इतिहास विच भाई संतोख सिंह जी ने सारे लिखे है। कल नूं 12 बजे साहबजादियां दी याद विच जपजी साहब का पाठ जरूर करके अरदास करियो। श्री अकाल तख्त साहब वालों हुक्म है भी 10 बजे 10 मिनट मूल मंत्र वाहिगुरू मंत्र का पाठ उन्होंने साहबजादियां की याद विच जरूर करना। जिन्हों ने अमृत नहीं छकिया अमृत छको, गुरु वाले बनो। जेडे नशा का सेवन करते भाई नशा का त्याग करो। जिन्हों ने केस कटाए है अज तो बाद केस ना कटियो। जे साहबजादियां की याद विच जुड़े हो, खुशी लैनी है साहबजादियां दी तो केसां नूं कैंची ना मुड़ के लायो। महापुरख संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा दे पुंज जिन्हां दियां बहुत वड्डियां सेवावां वो चेचे तौर पर साडी बेनती मन के संगत का सत्कार हिरदे विच लैके पहुँचे है। वध चढ़ के भाई महापुरखों दियां बहुत वड्डियां घालना बहुत वड्डियां सेवावां पूरा डट के महापुरखों के नाल सेवा दे विच आपां सारिआं ने सहयोग देना। महापुरखों नूं मैं रोम रोम करके जियो आया आखदा सारी संगत वालों सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी प्रबंधक कमेटी का रागी सिंघां दा ढाडी सिंघां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार चरणदीप सिंह जी जो इस गुरु घर के मुख सेवादार हैं उन्हां दा जिन्होंने हैप्पी सिंह करके सारे जानते हैं उन्हां दा सरदार जसपाल सिंह जी चेयरमैन सुप्रीम सिख कौंसल नवीं बबई इन्हां शख्सियतां दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। भुलां चुकां खिमा करनियां। सब कुछ तेरा तू अंतरजामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनों दात करह सो पाए जन नानक अवर ना कोई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की